Hello dear students of class 11th. I am here to deliver one more video lecture related with vector algebra. In my last video lecture, I shared with you what are the different laws which we use to find the resultant of two vectors or more than two vectors. If we have two vectors and if they represent two cyclic sides of the triangle, then we use triangle law vector. If we have two vectors which are representing two adjacent sides of parallelogram, then we use parallelogram law vector. If we have so many vectors representing cyclic sides of polygon, then we use polygon law vector. Then we discuss how we find the resultant of two vector by analytical method, means with the help of formula without using pencil, scale and protractor, how we calculate the resultant, how we find the resultant and how we find in which direction resultant will act. The formula which we develop to find the resultant of two vectors as well as the formula which we develop to find the direction of resultant, these two are very important and you must know these two relations, because most of the time you will do calculation to find the resultant, you will not get pencil, scale and protractor to find the resultant using tip and tail method. Now today topic is again very interesting. That topic is vector resolution. Dear students, vector resolution means resolving any vector quantity into two mutually perpendicular direction. This vector resolution phenomena takes place only when we have a vector quantity which is neither acting in horizontal direction nor acting in vertical direction, and we want to know what will be the effective value of this vector quantity in horizontal direction or what will be the effective value of this vector quantity in vertical direction. Then we go for vector resolution. Now vector resolution is a phenomena in which we resolve vector quantities, but make it clear that the components of the vector quantity which we get along horizontal direction as well as along vertical direction, they are not vector, they are scalar. By multiplying these components by corresponding unit vector, we can make them in vector form. What is the meaning of vector resolution? See from this discussion. Suppose we have a vector quantity vector A. This vector quantity is making an angle of theta from x-axis. These two are the two mutually perpendicular axes x and y. If we have a vector quantity A which is acting an angle of theta from horizontal direction, then as we discussed so many times, if vector quantity is given and we find its mod, then we get length. So if this is vector A, so from here to here length will be only A, magnitude of this vector. Now if we draw perpendicular from tip of the vector in the along x-axis, we get a right angle triangle. Let this is component of vector A along x-axis and this will be component of vector A along y-axis. So in this triangle, if we apply cos formula from figure, cos theta is equal to ax by a base upon hypotenuse, implies that ax is equal to a cos theta. Similarly, in the same triangle, if we apply sine formula, sine theta is equal to ay by a, implies that ay is equal to a sine theta. This ax which we are getting as a cos theta is called horizontal component of vector A, and this ay is called vertical component of vector A. Now see here,
this is magnitude of vector A and the value of cos theta will also a number, this will be a number. That is why I am saying that when we resolve vector into two mutually perpendicular direction, the component which we get remains scalar. This A cos theta is horizontal component and this A sin theta is vertical component. Any activity responsible for horizontal direction will be because of this component. Any activity responsible for vertical direction will be because of this component A sin theta. Now it is not necessary always that along horizontal component of vector will have cos value and along vertical component of the vector will have sin value. If the same vector A is given which is making an angle of theta from y axis, then this is AX horizontal component, this is AY vertical component. Now if we apply this angle is theta, so this angle will be theta. Now in this right angle triangle, AX will come as A sin theta and AY will come as A cos theta. So now horizontal component is A sin theta and vertical component is A cos theta. So don't just keep in the mind that whenever we resolve the vector, component along x axis will have cos value and component along y axis will have sin value. It may acquire cos value, it may acquire sin value, that depends upon what angle is given to you. Means the vector quantity is making how much angle from either x axis or y axis. Now if this vector is not acting at some angle from x or y, let vector A acts along x axis only, then we are not in position to resolve. Let vector A is acting along y axis only, then also we are not in position to resolve, because in the beginning I told you that only those vector quantities can be resolved which are neither acting in horizontal direction nor acting in vertical direction. So I think what is vector resolution, it will be clear to you. Effective value of vector quantity along horizontal axis, effective value of vector quantity along vertical axis. The effective value along vector quantity of horizontal axis is known as horizontal component. Effective value of vector quantity along vertical axis known as vertical component. Now why we discuss it? What is the purpose of discussing this vector resolution? That will be cleared when we share next topic, which is application of vector resolution. Application of vector resolution. Vector resolution प्रैक्टिकली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? वेक्टर रेजोल्यूशन को पढ़ने का पर्पस क्या है? वैसे तो वेक्टर रेजोल्यूशन के बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, कुछ हम आपको बता रहे हैं, एंड जस्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी फ्रॉम द रेफरेंस बुक. नंबर 1, फ्लाइंग ऑफ बर्ड. किसी बर्ड का उड़ना वेक्टर रेजोल्यूशन का एग्जाम्पल है. यू नो दैट bird flies with the help of wings. Now question can arise that if we create vacuum in this room, whether bird will be able to fly or not, because most of the time when we see bird is flying, it moves in air. So whether air is must for flying of bird or bird can fly in vacuum also? Answer is bird cannot fly in vacuum. Now question arises, why bird cannot fly in vacuum? That we are going to share with you. How you see how we are going to discuss how bird flies. It is the symbol of the wings of the bird. Let these two are the wings. When bird flies, it moves the wing in downward direction. इसीलिए अगर आप बर्ड की विंग्स को नॉट कर दे किसी स्ट्रिंग से, बर्ड की विंग्स मूव ना कर पाएँ तो बर्ड फ्लाई नहीं करेगी.
तो व्हेन बर्ड फ्लाइज इट मूव द विंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस विंग हेयर एंड दिस विंग हेयर। पर्पज़ ये है कि इस तरह से दोनों विंग जब मूव करती हैं, दे एक्सर्ट फोर्स ऑन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर विंग्स ने इधर की ओर फोर्स एक्सर्ट किया तो विंग्स पर इधर की ओर रिएक्शनल फोर्स डेवलप हुआ, अपोजिट टू द एक्शन फोर्स। दिस विंग ने इधर की ओर एक्शन फोर्स डेवलप किया, इधर की ओर रिएक्शनल फोर्स डेवलप हुआ। तो जस्ट टू एक्सपीरियंस रिएक्शनल फोर्स बर्ड फ्लाइज द विंग्स इन एयर। मान लीजिए एयर ना होती तो एक्शन नहीं होता, अगर यहाँ पे वैक्यूम होता तो एक्शन नहीं होता, एक्शन नहीं होता तो विंग्स पे रिएक्शनल फोर्स भी नहीं लगता। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें तो बर्ड कैन नॉट फ्लाई। वंस विंग्स विल एक्सपीरियंस रिएक्शनल फोर्स, यू कैन सी दैट दीज रिएक्शनल फोर्स आर नाइदर एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नॉर इन वर्टिकल डायरेक्शन। जो रिएक्शनल फोर्सेज हैं, जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो रिएक्शनल फोर्सेज हैं वो ना ही हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहे हैं ना वर्टिकल एक्ट कर रहे हैं। इफ लेट दिस एंगल इज थीटा, अगर हम ये मानते हैं कि रिएक्शनल फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ दिस रिएक्शनल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जस्ट नाउ आई डिस्कस इज आर कॉस थीटा। इसका भी इधर की ओर कंपोनेंट आर कॉस थीटा होगा। ये दोनों कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा और इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे और इसकी वजह से इधर की ओर बर्ड मूव करने लगेगी। क्योंकि किसी भी बॉडी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखने के लिए, मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स ये दोनों फोर्सेस हैं, सम ऑफ आर साइन थीटा एंड आर साइन थीटा। नाउ इमेजिन कीजिए वैक्यूम होता, एक्शन ना होता, एक्शन ना होता, रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता तो इधर की ओर रिएक्शनल फोर्स से कंपोनेंट नहीं मिलते, इसलिए बर्ड फ्लाई नहीं कर सकती थी। दैट इज वाई व्हेनेवर यू सी दैट बर्ड इज गोइंग टू फ्लाई, फर्स्ट विंग्स बर्ड प्रेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, then only bird is able to move up. And why not bird can move in this vacuum? Because there will be no action vacuum, so there will be no reaction vacuum. So you can say that flying of the bird is the example of vector resolution. This is how we can apply the vector resolution method to explain how bird flies. And this was the first application. Second application is चॉइस ऑफ पुलिंग और पुशिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत जूनियर क्लास से पूछते हैं कि किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए पुशिंग बेटर है कि पुलिंग बेटर है। तो कभी आंसर स्टूडेंट देते हैं पुलिंग, कभी देते हैं पुशिंग। तो एग्जाम्पल अगर ये दिया जाए कि जितनी भी व्हीकल्स या जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बनी हैं वो गॉड ने बनाई है कि ह्यूमन बीइंग ने, तो आंसर मिलता है ह्यूमन बीइंग ने। तो फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन सारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में इंजन कहाँ होता है, तो आंसर मिलता है आगे। गुड्स किधर होते हैं, आंसर मिलता है पीछे। इसका मतलब इंजन गुड्स को खींच रहा है, ना कि धक्का दे रहा है। तो साइंटिफिकली पुलिंग बेटर है पुशिंग से। खींचना आसान है, धक्का देना मुश्किल है। इसीलिए क्रेन भी बॉडी को पुल करती है, खींचती है, ना कि पुश करती है। इसीलिए इंजन ऑफ द गुड्स ट्रेन पुल द गुड्स, नॉट पुश द गुड। इसीलिए ट्रैक्टर ऑफ द ट्रॉली पुल्स द ट्रॉली, नॉट पुश द ट्रॉली। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम पुलिंग ऑप्शन प्रीफर करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है पुलिंग क्यों बेटर है। तो अगर ये क्वेश्चन है कि पुलिंग और पुशिंग ऑप्शन में कौन बेटर है, आंसर विल बी पुलिंग। ना क्वेश्चन डेफिनेटली विल डेवलप व्हाई, सी द आंसर। कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है। तो जब हम किसी सरफेस पर किसी बॉडी को रखते हैं तो बॉडी पर एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है
जो सरफेस डेवलप करती है। और जब तक कि फॉरवर्ड फोर्स हम फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा नहीं करेंगे, जब तक कि फॉरवर्ड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा नहीं होगा, बॉडी फॉरवर्ड नहीं जा सकती। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास एक बॉडी है, जिस बॉडी का मास m है तो उसका वेट होगा mg, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स वेट। हम इस बॉडी को आगे की ओर मूव करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है हम बॉडी को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। बाद में डिस्कस करेंगे हम बॉडी को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। हमने बॉडी को चलिए धक्का दिया, पुश किया इस डायरेक्शन में, इतना F फोर्स लगाकर हमने बॉडी को पुश कर दिया थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से। तो जो फोर्स लगाकर हम बॉडी को पुश कर रहे हैं, उस फोर्स का वो फोर्स ना ही हॉरिजॉन्टल ऐड कर रहा है ना ही वर्टिकल ऐड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा F sin थीटा। ये F cos थीटा फॉरवर्ड फोर्स है, F sin थीटा डाउनवर्ड लग रहा है। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स व्हाइल वी आर पुशिंग द बॉडी इज mg प्लस F sin थीटा। तो बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला लगने वाला नेट फोर्स बढ़ गया, इसलिए बॉडी पर रिएक्शनल फोर्स भी बढ़ गया, क्योंकि एक्शन इतना है तो ये रिएक्शन होगा। फिर आप आगे पढ़ेंगे फ्रिक्शन चैप्टर में कि फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स रिएक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स रिएक्शनल फोर्स। ये सब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर, इसी टॉपिक के बाद, इस यूनिट के बाद। तो अगर बॉडी पर पुश करने से बॉडी पर पहले बॉडी पर डाउनवर्ड फोर्स mg था, पुल करने से डाउनवर्ड फोर्स mg प्लस F sin थीटा हो गया। मीन्स बॉडी पर डाउनवर्ड फोर्स बढ़ा तो रिएक्शनल फोर्स बढ़ा, रिएक्शनल फोर्स बढ़ा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ गया। तो अंडरस्टूड सी बात है, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, हम ज़्यादा वर्क डन करेंगे, हम ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे। मीन्स अगर हमारी कोई व्हीकल किसी फ्यूल से चलती है तो वो फ्यूल कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगा। वाइल वी आर इंटरेस्टेड टू डिस्प्लेस द बॉडी बाई चूजिंग पुलिंग ऑप्शन। क्या आंसर है? जब हम बॉडी को पुल करते हैं, बॉडी पर डाउनवर्ड फोर्स बढ़ जाता है, इसको हम लोग अपेरेंट वेट भी कहते हैं। बॉडी का अपेरेंट वेट बढ़ जाता है। पहले mg था, अब mg प्लस F sin थीटा हो गया। बॉडी का अपेरेंट वेट बढ़ने के कारण रिएक्शनल फोर्स बढ़ जाता है, रिएक्शनल फोर्स बढ़ने के कारण फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है। सो मोर फोर्स वी हैव टू अप्लाई टू डिस्प्लेस द बॉडी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो मोर फ्यूल कंजम्पशन विल टेक प्लेस। ये ऑप्शन कब है? जब हम बॉडी को पुश कर रहे हैं। अब सेकंड ऑप्शन है कि हम बॉडी को पुश करें। हमने यही बॉडी रखी इसी सरफेस पर जिसका वेट mg है, और हमने बॉडी पर F फोर्स लगाकर खींचा थीटा एंगल पर। अब इस F का इधर की ओर कंपोनेंट होगा F cos थीटा और इधर की ओर इस कंपोनेंट होगा F sin थीटा। पहले बॉडी पर एक फोर्स mg लग रहा था, खींचते ही एक फोर्स ऊपर लगने लगा, तो बॉडी पर नेट डाउनवर्ड फोर्स हुआ mg माइनस F sin थीटा। ये बॉडी पर नेट फोर्स हुआ डाउनवर्ड, मीन्स ये बॉडी का अपेरेंट वेट हुआ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जब नेट डाउनवर्ड फोर्स mg से घट गया तो रिएक्शनल फोर्स की वैल्यू भी कम हो गई, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी कम हो गई, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स रिएक्शनल फोर्स पे डिपेंड करता है। जब हमने बॉडी को खींचा नहीं था, रिएक्शनल फोर्स mg था, और जब हमने बॉडी को खींचा तो रिएक्शनल फोर्स हो गया mg माइनस F sin थीटा। तो रिएक्शनल फोर्स डिक्रीज करने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया। तो कम वर्क डन करना पड़ेगा बॉडी को खिसकाने के लिए, कम एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, कम फ्यूल कंजम्पशन होगा। तो नाउ यू कैन एक्सप्लेन बेटर
pulling is better or pushing is better? While we pull, less effort we have to do to displace the body. While we push, more effort we do to displace the body. So definitely scientifically pulling is better than pushing. That is why when we engineers design the such type of vehicle which is used in transportation, always we prefer pulling option, we never prefer pushing option. And this is also the application of vector resolution. Third is प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग, चलने का क्या प्रिंसिपल है? डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम कैसे, इसके लिए भी बड़ा साइंटिफिकली आंसर्स हैं। पहली बात, अगर हम अर्थ पर नॉर्मल फोर्स लगाएं तो जब एक्शन नॉर्मल है तो रिएक्शन भी नॉर्मल होगा। ये अर्थ है, हमने अर्थ से पर अपने पैर से नॉर्मल फोर्स लगाया तो रिएक्शन भी नॉर्मल है। रिएक्शनल नॉर्मल होने के कारण कोई भी फोर्स हमारी बॉडी पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगने के कारण प्रैक्टिकली हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा कि आप करते हैं जब आप अपने प्लेस पे खड़े होकर मार्च पास्ट करते हैं, उस मोमेंट पर आप अपने लेग्स को अर्थ पर नॉर्मली प्रेस करते हैं, रिएक्शनल फोर्स भी नॉर्मल लगता है। यू आर नॉट गेटिंग एनी फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ वाई यू आर नॉट एबल टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब आप चलते हैं तो आप अपने पैरों के पोस्चर को चेंज करते हैं और फोर्स अर्थ पर इस तरह से लगाते हैं, इंक्लाइंड। जब आप अर्थ पे फोर्स इंक्लाइंड लगाते हैं, रिएक्शनल फोर्स भी इंक्लाइंड मिलता है अपोजिट टू इट। नाउ यू कैन से दैट वन कंपोनेंट ऑफ रिएक्शनल फोर्स is acting in forward direction and one component of reactional force is acting in upward direction. The component of reactional force acting in upward direction balances your downward force weight, and this is unbalanced force. This force help you to move in forward direction. इसलिए जब आप लोग मार्च पास्ट करते हैं और आपको इंस्ट्रक्शंस मिलता है मूव अहेड, तो आप अपने पैरों के को इस तरह से अर्थ पर एग्जर्ट करते हैं। ये साइंटिफिकली डिस्कशन है कि व्हेन वी आर प्रेसिंग द अर्थ नॉर्मली, वी आर रिसीविंग रिएक्शनल फोर्स नॉर्मली, वी आर नॉट गेटिंग एनी फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो वी कांट मूव। बट एज वी ट्राई टू मूव, वी हिट द अर्थ एट सम इंक्लाइंड एंगल, we get reactional force at inclined angle. It's one component acts in forward direction which helps us in moving forward direction. Dear students, आपने देखा होगा अक्सर कभी कभी ऐसा होता है घरों में कि जो बेबीज़ जस्ट बॉर्न होते हैं, जिनको कि एक सर्टेन एज के बाद वॉक करने को टेंडेंसी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि द मोमेंट दे स्टार्ट वॉकिंग दे फॉल डाउन। जब ये प्रोसेस बार बार होती है, बहुत देर में बच्चा चलना शुरू करता है या बच्चा चल नहीं पा रहा है, एज ज़्यादा हो रही है, 6.5 मंथ हो गया, 12 मंथ्स हो गया, बच्चा नहीं चल पा रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है तो गिर पड़ा है, तो इसके लिए फिर डॉक्टर से सजेशन लेना पड़ता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स उस बच्चे को वॉक करने के पोस्चर में उसकी MRI करते हैं, उसकी पिक्चर लेते हैं, तो यही पाते हैं कि जब जब बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है, फोर्स नॉर्मल ऐड कर रहा है, उसके जो पैर की डिज़ाइनिंग ऐसी है कि फोर्स नॉर्मल ऐड कर रहा है, उसको फॉरवर्ड फोर्स नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही आगे बढ़ता है गिर पड़ता है। तो डॉक्टर्स एक स्पेशल टाइप के शूज़ प्रोवाइड करते हैं डिज़ाइन करके। शूज़ पहनने के बाद मे बी उसका पोस्चर नॉर्मल लेग का है, लेकिन शूज़ ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि जब वो शूज़ पहन लेता है तो उसके पैर अर्थ पे इस तरह से पड़ते हैं, और जब उसके पैर अर्थ पे इस तरह से पड़ते हैं, रिएक्शनल फोर्स इंक्लाइन लगता है, उसको एक फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलता है और वो चलने लगता है।
ऐसा होता है, मे बी यू हैव सीन, मे बी यू हैव हर्ड दैट कुछ बच्चों को चलने में जब प्रॉब्लम होती है तो उनको एक स्पेशली डिज़ाइन शूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके पीछे यही साइंटिफिक रीज़न है कि शूज़ ऐसे होने चाहिए कि बच्चा जब शूज़ पहन के अर्थ पे फोर्स लगाए तो फोर्स नॉर्मल ना लगे बल्कि कुछ इंक्लाइन पाथ पे लगे, जिससे उसका मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सके। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग। These are the few applications of the vector resolution which we have discussed here. Few more we will discuss when we go in work energy power chapter, when we will go in the rotation motion chapter. So till that time you keep in mind what is vector resolution and what are the important applications of vector resolution. Now next topic is determination of unit vector, special unit vectors. डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स। नंबर 1, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू गिवन वेक्टर। आपको कोई वेक्टर दिया गया और आपसे कहा गया इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर कौन सा है। तो कॉन्सेप्ट क्या, जरा कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसके बाद मैं इस फॉर्मूले पे जाता हूँ। अगर आपके पास कोई वेक्टर 3i है और आपसे कहा जाए ये वेक्टर किधर ऐड कर रहा है, तो आप बहुत आसानी से कह दोगे कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस पर ऐड कर रहा है। आपसे कहा जाए जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर ऐड कर रहा है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे i, क्योंकि आप जानते हैं अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर i होता है। तो अब अगर इस क्वेश्चन पे आए कि अगर ये वेक्टर a3i है तो वो वेक्टर जो इसके पैरेलल क्या था, आपने कहा i होगा। आया कैसे? जब हमने वेक्टर a को इसके मॉड से डिवाइड किया। वेक्टर a है 3i, इसका मैग्नीट्यूड होगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, i मिल गया। और वही आप कह रहे थे कि i वो यूनिट वेक्टर है जो इसके पैरेलल है, क्योंकि ये है 3i वेक्टर, तो ये है और ये है i वेक्टर, तो हम कह सकते हैं 3i के पैरेलल i है। टेक वन मोर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई वेक्टर 4j है तो आप कहोगे वो वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है y एक्सिस की तरफ। आपसे कहा जाए वो यूनिट वेक्टर बताओ जो इसके पैरेलल है, तो आप जानते हैं कि y एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होता है j, और j ही 4j के पैरेलल है। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू b, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर b इज j। आया कहाँ से? जब हमने वेक्टर b को इसके मॉड से डिवाइड किया, क्योंकि वेक्टर b है 4j, इसका मैग्नीट्यूड होगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, j मिला। जिस तरह से यहाँ पे वेक्टर a को इसके मॉड से डिवाइड करने पे हमको वो यूनिट वेक्टर मिला था जो वेक्टर a के पैरेलल था, उसी तरह से यहाँ पे वेक्टर b को उसके मॉड से जब डिवाइड किया तो हमको वो यूनिट वेक्टर मिला जो इसके पैरेलल है। तो इन जनरल अगर हमको कोई ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो किसी वेक्टर के पैरेलल है, तो हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर, लेट वो वेक्टर x है, बराबर होगा वेक्टर x डिवाइड बाय इट्स मॉड। ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर को निकालने का। कोई वेक्टर x है, आपको दिया गया और कहा गया कि बताइए वो यूनिट वेक्टर क्या है जिसके पैरेलल है, तो आप उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए वेक्टर y इज 3i माइनस 2j प्लस 6k, वो यूनिट वेक्टर बताइए जो इसके पैरेलल है। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर y will be vector y divided by its mod, that is 3i minus 2j plus 6k divided by इसका mod। किसी भी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर, दैट इज 3i माइनस 2j प्लस 6k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 49 मीन्स 7। ये है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर y।
तो दिस फॉर्मूला यू शुड नो कि अगर हमको किसी वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमको उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। ये जनरल फॉर्मूला है। नाउ लास्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर्स। Unit vector perpendicular to given two vectors. How we find unit vectors? Unit vector perpendicular to given two vectors. Unit vector perpendicular to given two vectors. आपने पढ़ा है दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको मिलता है ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पे आप कहते हो एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये आपको बताया गया था दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में, और हमसे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर से पूछ रहा है, तो यहाँ से एन कैप की वैल्यू होगी क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। और आप हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखिएगा हमने आपको बताया था ए इंटू बी इंटू साइन थीटा होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी हों और हमसे कहा जाए वो यूनिट वेक्टर बताइए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को उसके क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड से डिवाइड कर दीजिए। इसमें एग्जांपल बता देता हूँ। आपसे कहा गया वेक्टर P 3i प्लस जे प्लस 2k है, वेक्टर Q i प्लस 2j माइनस k है। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर P एंड वेक्टर Q। तो आप कहेंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर P एंड वेक्टर Q विल बी इक्वल टू P क्रॉस Q डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ P क्रॉस Q। तो सबसे हम पहले P क्रॉस Q निकालेंगे। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट बनाते हैं। यहाँ पे I लिखते हैं, यहाँ पे J लिखते हैं, यहाँ पे K लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे 3 1 2, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 -1। I बाहर निकालेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे। -1 -4 -j बाहर निकालेंगे, -3 -2 प्लस k बाहर निकालेंगे 6 -1। तो आपको मिलेगा -5i प्लस 5j प्लस 5k। ये आपको मिल गया P क्रॉस Q की वैल्यू। इसके बाद आप P क्रॉस Q वेक्टर का मॉड निकालेंगे। कैसे? अंडर रूट लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर। आपको मिलेगा √75। तो आप बोलेंगे सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर P एंड वेक्टर Q। सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर P एंड वेक्टर Q इज इक्वल टू P क्रॉस Q, दैट इज -5i प्लस 5j प्लस 5k डिवाइडेड बाई √75। ये आंसर है। ये वो यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर P और वेक्टर Q दोनों के परपेंडिकुलर है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे। अगर आपको पसंद आया वीडियो लेक्चर, अगर आप समझ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए कि सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ, उनको बेनिफिट हो देखने का। थैंक यू।